equations in two variables. Now we are going to go for quadratic equation. What is a quadratic equation? See, I'll give a general form of quadratic equation. General form of quadratic equation. यह है ax square is ax square plus bx plus c equal to 0. Ax square plus bx plus c equal to 0, where a cannot be equal to 0. ये a 0 नहीं हो सकता क्योंकि a 0 हो गया तो x square निकल जाएगा नहीं. And degree and highest और डिग्री करो एंड डिग्री मतलब हाईएस्ट डिग्री of equation is 2. Degree of the equation has to be 2 and a cannot be 0. जो coefficient of x square है, x square का जो coefficient है वो 0 होना चाहिए. ओके, हम चालू करते हैं. बहुत आसान चैप्टर है. टेबल्स अच्छी तरह से बाहर होनी चाहिए. 20 तक होंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम जाता है एग्जाम में सॉल्व करते समय. ओके, लेट अस स्टार्ट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 2.1 practice set. First question, write any two quadratic equations. So practice set. (2.1) First question, write any two quadratic equations. So write down any two quadratic equations, so it will be answer. The examples of quadratic equations are, लिखो कोई भी दो, 2x square, okay, plus okay, 2x square plus 3. 2x square plus 3, so 3 to the 6, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 6 no 7x, तो 3 to the 6, 6 1 the 6 हो सकता है, या 5 भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. You can take 5x also. Okay, equal to 0. This first equation. दूसरा इक्वेशन है x square plus 2x plus 1 equal to 0. ये हो गया अपने two equation. You can put y also here if you want. Instead of x, you can put y. So दो equations हो गए. Now we go to decide which of the following are a quadratic equation or not. So question number 2 है solution. Question number 2 का decide which of the following are a quadratic equation. Let's first write down. उन्हें दिया है x square plus 5x minus 2 equal to 0. हाँ, ये quadratic equation है. See, the square term exists, highest degree is 2, and this is like ax square plus bx plus c. Ax square plus bx minus c equal to 0. So it is in a general form. Therefore, the answer is yes.
It is a quadratic equation. Write in words, complete words. Quadratic equation. Second, y square equal to 5y minus 10. Bring all on left hand side, so we get y square minus 5y plus 10 equal to 0. Yes, this also is a quadratic equation because again it is in a form of, यहाँ देखो y square, मैं प्लस लेता हूँ माइनस 5 कोइफिशिएंट है प्लस 10 इक्वल टू 0. देखो ये है a स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर प्लस by प्लस इक्वल 0. यस, आंसर क्या है इसका? यस, it is a quadratic equation. थर्ड पे जाते हैं. y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 2 को इस साइड लेके आओ या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय करो. y, ये नीचे का y निकालना है अपने को. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, तो क्या होगा? ये y क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2y. ब्रिंग 2y ऑन लेफ्ट हैंड साइड. y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0. सिंस, देखो इसका आंसर क्या है? ये डिग्री देखो, डिग्री इज 3, डिग्री 2 नहीं है, क्योंकि सिंस द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, ये जो डिग्री है ये क्वेश्चन में देखो, डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज नॉट 2, इट इज 3. 2 से कम हो या 2 से ज्यादा हो तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होता. सो दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यू आर राइट. सिंस degree of equation is not 2, hence it is not a quadratic equation. ये quadratic equation नहीं है. फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं. x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 2. x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 2. चलो मल्टीप्लाई करो, ये x निकालना है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, तो ये क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2x. माइनस 2x को इस साइड लेके आओ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यस, it is a quadratic equation. इसका रीजन क्या है? डिग्री इज 2 and it is in a general form. It is in a general form. That is ax square plus bx plus c equal to 0. Fifth question. m plus 2 m minus 5 equal to 0. m plus 2 m minus 5 equal to 0. मल्टीप्लाई करो बच्चों. m into we get m minus 5 plus 2 m minus 5 equal to 0. m into m square minus 5 into m 5m plus 2 into m 2m minus 2 5 are 10 equal to 0. तो क्या मिलता है? m स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3m माइनस 10 इक्वल 0. अगेन दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज को जनरल फॉर्म लिखोगे तो ये आएगा m स्क्वायर प्लस, हमेशा प्लस में होता है तो ये माइनस आएगा, ये माइनस b, सॉरी माइनस 3 इज b वैल्यू, a इज 1 और ये प्लस माइनस 10. तो ये फॉर्म में है. दिस इज इन अ फॉर्म am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0. देखो इस फॉर्म में है. देयरफॉर आंसर यस, the equation, yes it is, in fact, yes it is a quadratic equation.
6 पे आते हैं, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर, सॉरी हाँ m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3m स्क्वायर, 3m क्यूब सॉरी 3m क्यूब को इससे इस साइड लेके आओ, we get here, we get m क्यूब माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 बराबर मिलता है कि आपने को 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां देखो डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज मोर देन 2, सो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो सिंस degree of equation is more than 2, hence it is not a quadratic equation। ऐसे मत लिखो, पूरे वर्ड्स में लिखो quadratic equation। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन अ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में हमें इक्वेशन को लिखना है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। उसके बाद हमें उसको कंपेयर करना है विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, और a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या है वो हमें लिखना है। चलो पहले लिखते हैं हम लोग। पहला इक्वेशन है क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन 1। पहला इक्वेशन क्या हमने दिया है, 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, सो ब्रिंग एवरीथिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या मिलता है अपने को, वाई स्क्वायर प्लस 2y, आई राइट वाई स्क्वायर फर्स्ट, देन वाई टर्म प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। प्लीज राइट इन ऑल पॉजिटिव फॉर्मेट। सो वी गेट वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये तो बराबर, लेकिन यहाँ देखो यहाँ माइनस 10 है, सो पुट प्लस एंड 10 माइनस 10 इंटू ब्रैकेट इक्वल 0। सो कंपेयरिंग विथ, इस इक्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ, नाउ यू हैव टू टेक वेरिएबल y, वेरिएबल x नहीं याद रखो। सो अकॉर्डिंगली हमें वो जनरल फॉर्म का इक्वेशन लिखना है, ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी इक्वल 0। चलो कंपेयर करो। सो ए क्या होगा, देयरफॉर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू माइनस। ये हो गया आपके फर्स्ट सॉल्यूशन। अभी हमें सेकेंड सॉल्यूशन करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x minus 1 the whole square, x minus 1 the whole square equal to 2x plus 3। x minus 1 को एक्सपैंड करो, तुम लोग जानते हो फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर, आइडेंटिटीज हमने पढ़ा था। सो वी गेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो ये क्या होगा, ये x माइनस 1 द होल स्क्वायर है, सो ये माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो ये क्या होगा, x स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2x, x इंटू 1 इज x, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, ये फॉर्मूला आएगा। सो ये पहला स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाद में माइनस, ये साइन माइनस है तो माइनस डालो 2, और बाद में इनको मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 इज x
-1 का स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव, प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, दिस इज 2x प्लस 3। अब इस साइड लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको प्रॉपरली लिखो, पॉजिटिव में प्लस -4 आएगा, पॉजिटिव लिखने का मतलब पॉजिटिव डालने के साथ पॉजिटिव नहीं करना है, साइन कोएफिशिएंट की सेम रहेगी, वो माइनस होगा तो उसको ब्रैकेट में डाल के आगे प्लस लिखो। देखो x ये माइनस है तो उसको मैं प्लस डाल के ब्रैकेट में -2 लिखता हूँ इक्वल टू 0। इसको अभी जनरल फॉर्म कंपेयरिंग विथ यहां वेरिएबल x है तो जनरल फॉर्म का इक्वेशन को और इक्वेशन में वेरिएबल x आएगा। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कंपेयर करो ये और ये, वी गेट a इक्वल टू 1, वी गेट a इक्वल टू 1, b क्या होगा? b इज -4 एंड c इज -2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको इरेज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू माइनस इंटू ब्रैकेट 3 माइनस x। एक्सपेंड करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस इंटू 3 इज -3, माइनस माइनस x सब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस एवरीथिंग इज पॉजिटिव तो एज इट इज रहने दो। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कंपेयर करो, a इज 1, वी गेट a इक्वल टू 1, देखो a इक्वल टू 1, व्हाट इज b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 3। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ पे जाते हैं। 3m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9, 2m स्क्वायर माइनस 9। इस साइड लेके आओ, लेफ्ट हैंड साइड चेंजेस, साइन चेंजेस, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, 9 इस साइड आएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या होगा? देयरफॉर 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर इज सिंपली m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखो, इस टर्म में मिडिल टर्म जो है m मिसिंग है, तो हमें मिसिंग टर्म में m तो लिखना है लेकिन उसका 0 लिखना है, 0 इंटू m इज 0। Therefore we get m स्क्वायर प्लस, ये मिसिंग टर्म है m, तो 0 इंटू m प्लस 9 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ, यहां वेरिएबल x और y नहीं है, m है, सो am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। व्हाट वी गेट a इक्वल टू, कंपेयर करो, am स्क्वायर और 1m स्क्वायर, a इज इक्वल टू 1, bm इक्वल टू 0m, सो b विल बी इक्वल टू 0 एंड व्हाट विल बी c वैल्यू? c विल बी 9। फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। p इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 6p, 3 इंटू ब्रैकेट, सॉरी p इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 6p इक्वल टू -5। ओपन करो, ये आएगा 3p प्लस 6p स्क्वायर इक्वल टू -5। देखो p इंटू 3, 3p प्लस एज इट इज p इंटू 6p स्क्वायर इक्वल टू 5। अरेंज करो, ये पहले स्क्वायर टर्म आएगा,
So 6p² plus ये 3p और साइड चेंजेस, साइन चेंजेस, comparing the equation with ap². अभी यहाँ वेरिएबल x नहीं है, y नहीं है, m नहीं है, यहाँ वेरिएबल क्या है p. तो ये आएगा ap² प्लस bp प्लस c इक्वल टू 0. कंपेयर करो, सो वी गेट a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू. लास्ट क्वेश्चन है अभी 6. अभी जगह नहीं है तो हम लोग यहां लिखते हैं. नया ये लेफ्ट हैंड साइड का इरेज करते हैं. सिक्स क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या दिया उन्होंने? x² minus 9 equal to 13. Bring 13 on left hand side. We get x² minus 9 minus 13 equal to 0. Therefore x² minus 22 equal to 0. इस इक्वेशन में x टर्म मिसिंग है. देखो मिडिल टर्म x टर्म मिसिंग है, तो हमें क्या करना है? 0x वहां डालना है बीच में. 0 into x is 0, मतलब कोई वैल्यू नहीं होता. Therefore x² plus 0x minus 22 equal to 0. अभी इसको कंपेयर करो. कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म क्या है? यहाँ वेरिएबल x है तो यूज वेरिएबल x. सो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये माइनस है तो हम लोग यहाँ प्लस करके या माइनस डाल के ब्रैकेट में लिख सकते हैं. Therefore what we get? कंपेयर करो. a इक्वल टू 1 we get a equal to 1, b equal to 0 and c equal to minus 22. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. अब डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन है या नहीं. चलो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. Determine whether the values given against each of the chord equation are roots of the equation or not. तो पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं. फर्स्ट क्या है? उन्होंने हमें जो इक्वेशन दिया है वो है x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल 0. x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल 0. और हमें जो x की वैल्यू दी है इट इज 1 एंड. अब इस बात को याद रखो, if value of x, reverse जा रहा हूं, if the value of x is the root of the equation, अगर होगा मतलब ये वैल्यू ऑफ जो भी वैल्यू ऑफ x दी होगी वो रूट ऑफ द इक्वेशन तभी होगा जब और when I substitute this x by the value of x, जो भी दी वैल्यू, you get LHS equal to RHS. मतलब राइट हैंड साइड 0 है तो हमें LHS जो लेफ्ट हैंड साइड वो 0 होना चाहिए. मतलब मैं x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन में डालता हूं x में, तो सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू आती है वो लेफ्ट हैंड साइड में 0 होगी. 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू 0. देखते हैं समझ में आएगा. इजी है. सॉल्यूशन लिखो. इफ
x equal to 1, then put, then what happened? Then चलो LHS क्या है निकालो. LHS is x square plus 4x minus 5. क्या है वैल्यू x की? हमने लिया है 1. So 1 square plus 4 into 1 minus 5. What you get? 1 square is 1 plus 4 ones are 4 minus 5. 4 plus 1 is 5 minus 5. So what is LHS? What is left hand side? Left hand side is 0. ये अपने को first होता है. And what is RHS? RHS is already 0. From 1 and 2, LHS equal to RHS. Therefore, x is equal to 1. Therefore, x equal to 1 is the root of equation x square plus 4x minus 5 equal to 0. क्योंकि x इक्वल टू 1 की वैल्यू इक्वेशन डालने के बाद LHS इक्वल टू RHS होता है, मतलब वो वैल्यू 0 हो जाती है. RHS 0 है ही तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाती है. सो LHS बिकम्स इक्वल टू RHS. हेंस इट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन. इन शॉर्ट, इक्वेशन में वैल्यू आने के बाद वैल्यू ऑफ द इक्वेशन शुड बी 0. ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं. ये अपना इफ. नाउ if x is equal to minus 1, then क्या होगा? देखो LHS क्या होगा? x square plus 4x minus 5. x कितना है? minus 1 the whole square plus 4 into minus 1 minus 5. क्या होगा ये? minus 1 का स्क्वायर 1, 4 ones are 4, but 4 into minus 1 is minus 4 minus 1. तो ये होता है 1 minus 9. So LHS मिलता क्या आपने को? LHS is 1 minus 9 is minus 8. What is RHS? RHS is equal to 0. ये पहला इक्वेशन भी दो from equation. Therefore LHS not equal to RHS. देखो, equation of the value of the equation is not 0, so LHS is not equal. Left hand side is not equal to RHS, मतलब right hand side. Therefore answer लिखो. Therefore x equal to minus 1 is not the root of equation x square plus 4x minus 5 equals. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड सब क्वेश्चन. क्या दिया है देखो इक्वेशन और उसके वैल्यू देखो क्या दिए हैं वेरिएबल के. सेकेंड इक्वेशन इज 2m square minus 5m equal to 0 और m की वैल्यूज क्या दी हैं? m equal to 2 और 5/2. चेक करो इन दोनों इक्वेशन, ये दो वैल्यू के लिए. इफ LHS equal to RHS, मतलब when I substitute the value of m equal to 2 in this equation, I should get लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0. इक्वेशन 0 आना चाहिए, वैल्यू 0 आना चाहिए. देखते हैं सोल्यूशन. इफ m है अभी, वेरिएबल इज m. इफ m इक्वल टू 2, देन LHS क्या है? लेफ्ट हैंड साइड 2m स्क्वायर माइनस 5m. सो 2 इंटू m की वैल्यू 2 है माइनस 5 इंटू 2. ये क्या आता है? 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4 माइनस 10. सो इट विल बी 8 माइनस 10, वैल्यू है माइनस 2.
देखो LHS की वैल्यू, LHS लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 नहीं आई, राइट हैंड साइड 0 है, LHS की वैल्यू 0 नहीं आई। इसका मतलब ये इक्वेशन में जो रूट है हमने लिया है n = 2 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। RHS लिखो, RHS = 0, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 देखो अनइक्वल है वो, देयरफॉर LHS not equal to RHS, therefore लिखो आंसर, therefore m = 2 is not the root of equation 2m² minus 5m = 0। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट जो वैल्यू है m की, नेक्स्ट वैल्यू क्या है m की, m = 5/2। उस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे क्या आता है। इफ m = 5/2 देन LHS कितना है, 2m² minus 5m, 2 into 5/2 square minus 5 into 5/2, ये क्या होगा, 2 into 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 minus 25/2, 5 से 25/2, ये कैंसिल होता है, 2 1 2 2, तो ये क्या आता है 25/2 minus 25/2। सो LHS क्या आ गया, LHS 0, तो इक्वेशन की वैल्यू 0 है, RHS 0 है ही पहले से, सो LHS = RHS, तो ये क्या होगा, रूट ऑफ द इक्वेशन RHS। therefore since लिखो, since LHS = RHS, therefore m = 5/2 is the root of equation, कौन सा इक्वेशन, 2m² minus 5m = 0 आ गया। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं अभी। फाइंड k इफ x = 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अभी k की वैल्यू फाइंड कर दी इस इक्वेशन में, और उन्होंने आपको दिया है रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3, तो x की वैल्यू जो 3 है वो रूट ऑफ द इक्वेशन, और सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में, गेट वैल्यू ऑफ k। नाउ सॉल्यूशन लिखो, x = 3 इज अ root of equation, therefore substitute the value of x = 3 in given equation। स्टार्ट करो अभी। So kx² minus 10x plus 3 = 0. This is the given equation. Therefore, substitute the value of x. x क्या है 3² minus 10 into x के बदले 3 plus 3 = 0. क्या होगा ये 3² 9k minus 30 plus 3 = 0. Therefore, ये क्या होगा 9k minus 30 plus 3 is minus 27 = 0. Take minus 27 on right hand side. Side changes, sign changes. Therefore, 9k = 27. Therefore, dividing both sides by 9. So, what we get, k = 27/9, k = 3। फाइनल आंसर लिखो। Therefore
the value of k is 3. सेम वे यहां जाना है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब रूट ऑफ द इक्वेशन इज गिवन टू यू, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, कोई भी एक दिया होगा ना तो भी चलेगा, सब्स्टिट्यूट करो और गेट द वैल्यू ऑफ के, जैसे हमने यहां किया। यहां देखो वेरिएबल x नहीं है, वेरिएबल m है, m इक्वल टू -7/5 इज वन ऑफ द roots of the given equation. Therefore, substitute m equal to -7/5 in the given equation. अब इक्वेशन क्या है वो, therefore 5 लिखो इक्वेशन, 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0, जो m के बदले -7/5 लिखो, therefore 5 -7/5 द होल स्क्वायर -7/5 प्लस k इक्वल टू 0। ये क्या होगा, 5 इंटू 7 7 49, लिखो नेगेटिव है, -7 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, सो नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 7 7 49 और 5 5 25। लेकिन ये नहीं होगा, ये प्लस इंटू माइनस विल बी -7 2 14/5 प्लस k इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 5 1 5 5, सो व्हाट वी गेट, 49/5 माइनस 14/5 प्लस k इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स है ना, उस साइड लेके जाओ, साइड चेंजेस साइन चेंजेस, सो k एज इट इज, ये उस साइड लेके जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, अरे ये 14/5 है भाई, 14/5, और ये जो है 14/5 पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, सो k की वैल्यू क्या आएगी, देखो एलसीएम इज 5, तो ये 14 माइनस 49, तो एक्चुअली 49 माइनस 14 करो और पुट द साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, दैट इज नेगेटिव, 9 माइनस 4 इज 5 एंड 4 माइनस 1 इज 3, तो ये आता है -35/5, डिवाइड करो, देयरफॉर k इक्वल टू -7, 5 7 35, देयरफॉर फाइनल आंसर लिखो, देयरफॉर value of k is -7.